Agarwal, your real estate dost. Welcome back to the K Realty Show. Today we have with us Mr. Dhaval Parekh from Maxgrow Realtors. Dhaval, welcome on our show. Hello, how are you? I am good, Dhaval. How are you? I am fine. We are so thankful to you that you gave us your valuable time to come on our show. Thank you so much for calling me on this show. The pleasure is all mine. Hello friends, this is Dhaval Parekh from Maxgrow Realtors. We are into real estate business since more than a decade, and we are specialized in commercial renting, outright purchase and pre-leased. Oh wow, that sounds very interesting, Dhaval. So you mean to say you do only commercial real estate? We are residential नहीं करते? No, we don't do residential, we do only commercial. So कोई खास वजह only commercial करने की? So basically हम लोग कमर्शियल इसलिए करते हैं बिकॉज काफ़ी सालों से हम लोग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, तो हमको जो लीड्स आती है वो भी कमर्शियल की ही आती है. सो बेसिकली काफ़ी कुछ रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल करने से अच्छा हमारा फोकस अभी एक ही जगह पे है, कमर्शियल पे, और उसमें हमको एवरी ईयर सक्सेस मिल रही है. Wow, that's so nice, Dhaval. So you mean to say that commercial and only commercial. If you get residential or other leads, you don't get it. हम लोग नहीं करते. अच्छा, that's something very nice. तो what you think कि commercial buy करते वक्त clients को क्या सोचना चाहिए? What should they consider? Because I believe you are mostly focused on Andheri market and especially Kanakya Wall Street. So basically कमर्शियल में जो बेनिफिट होता है इन्वेस्टर्स को और बायर्स को, दैट कमर्शियल का जो रेट है वो अप्रिशिएट होता है ईयर ऑन ईयर, और आपको जो ROI मिलती है दैट इज़ बेटर देन रेसिडेंशियल. तो ROI आपको 7% 8% भी मिल जाती है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन. सो किसी का बड़ा अमाउंट भी लग जाता है और उसको कंटिन्यू ROI भी मिलती है. और बेसिकली हम लोग जो बिल्डिंग में काम करते हैं, इट इज़ एट द प्राइम लोकेशन एंड अ ह्यूज बिल्डिंग, और यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट्स हमेशा आते हैं और उन लोग के ट्रांजैक्शंस भी हो जाते हैं. सो बेसिकली ओनर्स आर आल्सो रिलीव्ड कि कोई भी क्लाइंट जाता है उसके साथ नया क्लाइंट आ भी जाता है. So धवल, आपने बोला कि ROI बहुत अच्छा मिलता है कमर्शियल में. Your investors prefer buying in commercial real estate. So what is you are basically in Kanakya Wall Street in Andheri East. So can you tell our viewers and investors who are listening to this show that why should they invest in Andheri East, Kanakya Wall Street? So Kanakya Wall Street is one of the biggest commercial complex of Andheri Kulla Road, Andheri East. The area of the building is approximately 1 million square feet. Oh wow, that's huge. There are 400 offices in the building. So the starting area is 811 square feet to 53,000 square feet. Oh. So there are companies like Coca-Cola, Apple, Starbucks, HSBC Canara, Manappuram Gold. So these kind of offices we have in the building, and they are sitting since long period. So that's a huge, very good clientele you have. So आपको बहुत मजा आता होगा इनसे. Yeah, we enjoy a lot over here, और यहाँ पे transactions भी बहुत फटाफट हो जाते हैं, easy हो जाते हैं because of the building. And this building is designed by Reza Kabul, which is one of the greatest architect of India, who has offices in Mumbai, Dubai, everywhere in Singapore. So वो आर्किटेक्ट का भी हमको एक बेनिफिट मिलता है. हमारा जो लॉबी है 20,000 स्क्वायर फीट का, हमारा गार्डन रूफ टॉप एरिया है जो 55,000 स्क्वायर फीट का. देयर इज़ अ जिम्नाशियम इन द बिल्डिंग इन द बेसमेंट टू. सो इट इज़ लोडेड विद लॉट्स ऑफ एमिनिटीज़ जो यूज़ हो सकती है. सो बेसिकली इसलिए हमारा बिल्डिंग इतना पॉपुलर भी है, लाइमलाइट में भी है, और अच्छे क्लाइंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं. और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है आपकी बुक. That's true. Very expensive. I think Kanakya Wall Street is, I think, A++ grade payday. So when we also get clients, everybody wants Kanakya Wall Street, but unfortunately they don't get it. So Dhaval, I believe आपने यहाँ पर काफ़ी सारे सेल किए हैं यूनिट्स. You have a lot of investors. So how do you manage them? उनका आगे आप मैनेज कैसे करते हैं उनके यूनिट्स, उनके जो प्रॉपर्टी हैं? So हमारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिसको प्रॉपर्टी रेंट पे लगानी है, तो उसका पहले हम लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं. फिर कोई इमरजेंसी आती है या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम रहता है तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं. वी डोंट डिस्टर्ब आवर इन्वेस्टर्स.
सो वो इन्वेस्टर्स अगर हमारे हैप्पी है और उनका कोई टाइम ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड, सो दे गिव अस द रेफरेंसेस, दे रिपीट भी होते हो हमारे साथ, तो उसका एक हम लोग को बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली वी ट्राई टू बी अ पैकेज दैट अगर एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसको बार बार फिर वही चीज़ के लिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। काफ़ी चीज़ हम लोग खुद मैनेज कर लेते हैं, कोई एक्सपेंस भी आते हैं तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। सो बेसिकली वो हमारा एक यूएसपी है, इसलिए हमारे क्लाइंट्स रिपीट होते हैं हमारे साथ। आज इतने सालों से हम लोग क्लाइंट्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पर कभी भी हमारे कोई क्लाइंट हमारे से दूर नहीं गए कि किसी और के पास गए। दे कम टू अस ओनली फॉर द अदर ट्रांजेक्शन। Right, right. So Dhaval, can you tell us what is the future of commercial real estate as well in Andheri East? Andheri being centrally located with along all 3 metros, यहाँ पे 3 metros हैं, एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपका पास में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है। सो आप व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू वांट टू टेल आवर क्लाइंट्स? कमर्शियल मेरे हिसाब से कमर्शियल अंधेरी कुल्ला रोड पे इतना डिमांड में है अभी आज की पोजीशन में, क्योंकि कमर्शियल में कोई नए प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे हैं, काफ़ी सालों से आए नहीं हैं और काफ़ी साल तक आने वाले भी नहीं है। देयर इज़ नो लैंड अवेलेबल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन अंधेरी कुल्ला रोड। सो अपनी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड है जो डे बाय डे बढ़ते जा रही है, बढ़ती है, दैट वी हैव ऑलरेडी फेल्ट, और हम लोग एवरी वीक फील कर रहे हैं जो हिसाब से हमारे पास क्लाइंट्स का फ्लो आ रहा है, हम लोग को लग रहा है कमर्शियल की डिमांड बढ़ेगी और बढ़ते ही जाएगी। Right, either Andheri will become a next BKC because BKC is again a place where the demand is high and supply is less. So Andheri will again become the second BKC. 100% और अंधेरी BKC और लोअर परेल से ज़्यादा प्रिफर्ड है स्टाफ के लिए भी। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास भी कोई इंक्वायरीज आती हैं। So why people are prefer Andheri East क्या, and they want कि नहीं हमको Andheri East ही चाहिए, they don't want to go to BKC also. Because of the connectivity, Western Express Highway and Metro by roads also, इतना कनेक्टिविटी अच्छा है अंधेरी कुल्ला रोड का, इसलिए यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और मेरा अजम्पशन है ये डिमांड बढ़ते ही जाएगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा यहाँ पे अंधेरी कुल्ला रोड का रेट्स विल बी बेटर दैन BKC लोअर परेल, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसकी वजह से हम लोग को लग रहा है इसका जो फीचर है ब्राइट। Yes, it's going to zoom. And I think for the staff also, as you were saying, staff के लिए भी बहुत convenient हो जाता है ट्रैवल का। मेरे आप मानेंगे नहीं मैम, मेरे ये बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 400 ऑफिसेज में से 350 क्लाइंट्स रहेंगे, पर आज तक कोई भी स्टाफ ने हमें ये नहीं बताया है कि लोकेशन क्यों ऐसा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी क्यों ऐसी है। बिकॉज अंधेरी रेलवे स्टेशन से भी यहाँ पे ऑटोज़ आती है जो शेयर रिक्शा होती है, इसलिए उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो बेसिकली बॉसेस तो आ जाते हैं अपनी गाड़ियाँ से, कार से। सो यहाँ पे 12,600 लोग काम करते हैं, जिसमें से 750 पार्किंग है, बाकी 12,000 लोग तो अपने हिसाब से ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं, तो उन लोग की भी कोई कंप्लेन नहीं आई है। बेसिकली अगर यहाँ से कोई क्लाइंट शिफ्ट भी होते हैं तो उनके स्टाफ हमें बताते हैं कि अभी हम लोग गोरेगांव शिफ्ट हो रहे हैं तो हम लोग का कनेक्टिविटी उधर जाएगा। सो यहाँ पे अंधेरी का ईस्ट का ये सबसे बेनिफिट है बड़ा, कनेक्टिविटी। तो the staff is very happy. 100%। Because if you have a client, तो client तो अपनी गाड़ी से आ जाएगा, पर staff कैसे आएगा? Right, right. Dhaval, you being an expert in commercial real estate, I really want to ask this. बहुत लोगों से मैंने पूछना चाहा, अभी मुझे exact answer नहीं मिला। ये रोज हम सुनते हैं कि लोडिंग इतनी है, लोडिंग उतनी है। That is basically only for the commercial. Residential is different. तो can you just elaborate कि what is this loading factor? बहुत कंफ्यूजन है मार्केट। या डेफिनेटली आई एक्सप्लेन यू। इनिशियली जब मैंने शुरुआत किया था रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, तभी हर एक बिल्डिंग के डिफरेंट लोडिंग हुआ करते थे, बट अभी काफ़ी सालों से ऐसा हो गया मैम दैट लोडिंग का अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। अभी बिल्डर भी सेल करता है ऑन कारपेट एरिया, और जो हम लोग अभी रेंट पे भी दे रहे हैं वो भी हम लोग कारपेट एरिया पे रेंट पे दे रहे हैं। सो लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ओके, तो मतलब अभी लोडिंग भले 70% हो, 50% हो या 60%, दैट डजंट मैटर मैम, इट्स ऑल ऑन कार। So Kanakya is a good place for investment. क्या वो 100%। अभी रिसेंटली हम लोग ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, लोग बैठे हैं सिंगापुर में और उन लोग के ट्रांजेक्शंस हम लोग यहाँ पे उनको दिला रहे हैं प्रॉपर्टीज इन कनाकिया वॉल स्ट्रीट। दे आर जस्ट हैविंग अ लुक
थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल और उन लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। नो डाउट टोकन देने के लिए उन लोग आता है मुंबई इंडिया, बट बेसिकली उन लोग अभी हमारे बिल्डिंग की चर्चा दुबई, लंदन, सिंगापुर सब जगह होने लग गई है, बिकॉज ये प्राइम लोकेशन पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी विच इज़ ऑलमोस्ट 5 एकर्स लैंड इन अंधेरी ईस्ट। 5 acres land. 5 एकर्स लैंड है। हमारा जो फ्लोर है सिंगल फ्लोर है 1 लाख स्क्वायर फीट का। That's huge. सो दैट इज़ अ ह्यूज। एक फ्लोर पे हमारे पास 35 ऑफिसेज है। सो टोटली हमारे पास 12 माले पे 400 ऑफिसेज है। वो भी एक हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। और हमारे बिल्डिंग में छोटे क्लाइंट्स अगर बड़े होते हैं तो भी उनको इसी बिल्डिंग में मिल जाता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट एरियाज इन द बिल्डिंग, Different size. डिफरेंट साइजेस ऑफ एरियाज। तो ऐसा नहीं है कि किसी को छोटे में से बड़े में जाना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा, उसका काम बिल्डिंग में ही हो जाता है। और बड़े में से भी कोई छोटे में आता है तो भी इसका काम बिल्डिंग में हो जाता है। एंड मुझे लगता है एक बार कनकिया वॉल स्ट्रीट में आ गया वो दोबारा और कहीं नहीं आएगा। They will not, you know, like even like the taste of. Definitely. That's true. That's really true. That's good. That's good. अच्छा है. That's very nice. So Rahul, thank you so much for coming on our show, giving us your valuable time. And हमें इतनी सारी insights मिली real commercial real estate के बारे में. I don't think there are many people who focus only on commercial real estate. So thank you very much. And we got to know a lot about Kanakia Wall Street as well. Thank you so much. Thank you so much for calling me on the show. Hope you grow and grow and grow in your life. Yes. And yes. Thank you so much. Thank you.